ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇਹ ਚੂੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸੀ। ਮਰੀ ਤੇ ਇੰਜ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਪਹਾੜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਢਿੱਡ ਤੇ ਨਾ ਲਿਆਇਆ ਕਰ। ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ? ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਫੈਸਲ ਖਾਨ ਸੂਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ ਸਾਦ ਮੁਹੰਮਦ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਸੀ ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਰ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇਹ ਚੂੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਭੱਜਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ। ਸਾਦ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜੀ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਸਾਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਚੜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਚੋਟੀਆਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੋਕਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਲਾਨੀ ਪਾਰਕ, ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਮਰਗਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਾੜ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਜਾਂ ਪਹਾੜ, ਚੋਟੀਆਂ। ਚੋਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਜੀ ਬਚਪਨ ਸੇ ਆਈ ਵਾਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਦੈਟ ਟਰੈਵਲਡ ਅ ਲੋਟ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁੰਜਰਾਬ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਕਰਦੂ, ਹੁੰਜ਼ਾ, ਨਰਾਨ, ਕਾਗਾਨ। ਤੇ ਮਰੀ ਤੇ ਇੰਜ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਸਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਟੋਕਾਂਗਾ, ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ? ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਡ ਟੂ ਸੀ ਯੂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋ since I come from a traveling family, तो आई गेस दिस इज़ द प्रोग्रेशन। एक जिसको हम कहें कि जिद्दत है उसी चीज़ में जो मैं करता आया, बचपन से देखता आया। तो आपकी एक स्टेज होती है द बिगिनिंग ईयर्स ऑफ योर लाइफ, जो 7 to 14 कह लें, या 1 से 7 साल की उम्र, वट एवर इज़ बीइंग यूर एक्सपीरियंसिंग, वो आपका ना इनग्रेन हो जाता है। तो जिसने अपनी ज़िंदगी के पहले 10 साल में ही मैटरहॉर्न भी देख लिया और राकापोशी भी देख लिया हो, नांगा पर्वत देख लिया हो, तो उसके लिए तो फिर एक नेचुरल सी बात है ना कि जी उसको चोटियाँ चढ़ने का शौक़ पैदा हो गया। बट इट वॉजंट लाइक दिस कि मैं एक दिन एकदम उठिया तो मैं सोचा नहीं जी मैं पहाड़ चढ़ने ने, इस तरह नहीं होता। 1996 च, अच्छा, जब मैं हाले स्कूल च गया था, आई वेंट एंड डिड अ कोर्स, स्कीइंग का कोर्स किया। स्कीइंग वो जो बर्फ से फटियां रख के तुसी थल्ले नूं जाईदा, किते नहीं जा सकते। सो पहला कोर्स किया, अगले साल एडवेंचर फाउंडेशन पाकिस्तान एक इदारा है, उन्हां दे नाल कीता। ते अगले साल उन्हां नाल मैं एक छोटी जी पहाड़ी ते नहीं, पहाड़ ही सी वो भी, मकड़ा है कागान च, जे तुसी गए हो उत्थे सरी पाया, लोकी उन्होंने सिरी पाए कहा जाते हैं, उस सरी ते पाया। अच्छा। ते उत्थे गए असी, ते मतलब आई गैस ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਰੀ ਪਾਏ ਦੇ ਸਿਰੀ ਪਾਏ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਕੜਾ 3800 ਕੋਈ 83 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀਕ ਸੀ 1997 ਚ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਚੜਾਂਗਾ। आई kept going with them, आता जाता रहा, कोई कोर्सेज़ किए, कोई रॉक क्लाइंबिंग, कोई रिवर राफ्टिंग, कोई वाटरमैनशिप, इस तरह की चीज़ें की। तो फिर दैन kept doing ट्रैक्स, झीलां वेखियां, हाई पासिस वेखे, बेस कैंप्स वेखे, तो सारा कुछ वेख के कोई 9 साल उसके बाद मैं डिसाइड किया कि यार हुण कुछ होर करिए। काफ़ी कर लिया। तो शमशाल एक गाँव है हुंजा के करीब। अगर आप लोगों ने समीना बेग का नाम सुना हो, Samina Beg is the only Pakistani woman to have climbed Everest. She comes from शमशाल, ये उसका गांव है, उसके खेलने कूदने की जगह है। तो वहाँ से एक चोटी है मिंगलीक सर, 2006 में मैं उधर गया और ये ट्रैकिंग पीक है। मतलब आपने ट्रैक कर लिए हैं और अभी आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो आप कहते हैं कि अच्छा ऐसा पहाड़ चढ़ूँ जिस पे मुझे कोई ज़्यादा रस्सी शसी ना लगानी पड़े। अच्छा। तो 2006 में वहाँ गया, वहाँ से बच के वापस आ गया, कुछ 5,500 मीटर तक गया। अच्छा। और वो एक अलहदा कहानी है कि वहाँ क्या हुआ, बट इट वॉज एन एपिक फेलियर एंड यू लर्न फ्राम योर फेलियर्स। तो उत्थों सीख के वापस आया, अगले साल जरा ब्रेक लाई, कोई छोटा मोटा ट्रैक किया। उस तो अगले साल फिर हिम्मत की, फिर शमशाल चला गया। 2008 च मेरी पहली चोटी हुई कि 5,500 मीटर की। वाह। तो मैं क्या जी बस ठीक है, हुण तो मैं
ਕੋਪੇ ਮਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ 2012 ਚ आई गॉट इवन मोर लकी तो स्पांतिक एक 7000 मीटर की कराक्रम चोटी है वो जब सर कर ली तो मैंने कहा कि हाँ अब मैं सोच सकता हूँ कि कोई 8000 मीटर की चोटी चढ़ूँ कोई टेक्निकल पहाड़ चढ़ूँ तो या दैट्स माई जर्नी। ਅੱਛਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਢਿੱਡ ਤੇ ਨਾ ਲਿਆਇਆ ਕਰ so वैसे तो मतलब एक अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है बट आप लाहौर जैसे शहर में रहे हाँ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਹੋਵੋ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੂਡੀ ਹੋਵੋ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਬੇ ਨਾ ਖਾਓ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਆਮ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਦੇਸੀ ਮਾਊਂਟੇਨਰ ਔਨ ਸੋਸ਼ਲ मीडिया तो देसी में पहले ऐसे वजह तो लाया कि मैं दस सकूँ कि मैं खा पी के आया तो मैं मतलब मैं नारियाँ भी खावांगा मैं पावे भी खावांगा तो मैं मगज़ आहा टका टक क्या बात है वीकेंड पे पूड़ी चने भी खाने ने बट क्या सो इट्स मोर ऑफ अ मेंटल गेम मेंटल स्ट्रेंथ आपकी आपके मसल मेमोरी बन जाती है जब आपने 12-12 घंटे की पहाड़ों में मार खाई हो तो फिर पेट मैटर नहीं करता वो वहाँ जाके 6-7वें दिन जो है ना वो ऐसे करके ख़त्म होता है ये अलग बात है कि वापस आके फिर उसी तरह ही आ भी जाता है बट क्या सो वो इट डजंट मैटर ओवर देयर। ਅੱਛਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਛੱਡ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣ ਜਾ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਬਣ ਜਾ सो यूड बी सरप्राइज टू नो कि बचपन में मैं बहुत छोटी क्लास में था जब मैं क्लब क्रिकेट खेलता था छठी जमात में मैं इस्लामाबाद जिमखाना का मेंबर था अच्छा एंड आई वुड गो पिचे रोल की हुई हैं ग्राउंडों के चक्कर लगाए हुए नेट्स किए हुए हैं एंड आई वाज वेरी सीरियस अबाउट माय क्रिकेट आई वाज वेरी पैशनेट और अगर आपको याद हो तो 92 के वर्ल्ड कप में जॉन्टी रोड्स का एक बड़ा मशहूर रन आउट है इंजमामुल हक को उसने रन आउट किया था भागता हुआ आया था और विकेटें उड़ा दी थी और ये अलग बात है कि अगर तब वो थर्ड एम्पायर वाला होता तो पता लगता कि वो आउट था नहीं बट वो इतना ब्रिलियंट था वो सारा मूव के एम्पायर उसको आउट दे दिया तो मैं आइडियलाइज़ करता था जॉन्टी रोड्स को कि फील्डर हो तो ऐसा हूँ एंड आई वॉज अ वेरी गुड फील्डर डाइवे शाइवे मारनी स्पेशलिस्ट फील्डर था बॉलिंग भी बैटिंग भी एंड आई वॉन्टेड टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम लेकिन यू वुड एग्री कि हम सारे पाकिस्तान टीम में नहीं जा सकते हाँ बिल्कुल मैं स्क्वाश भी खेडी है मैं बैडमिंटन भी खेडी है मैं स्विमिंग भी की है मैं होर भी काफ़ी कुछ इस तरह का करता रहे हैं हत्ता कि अपने क्लब में मैं टॉप सीड रहा हूँ स्क्वाश में बट एट एनी ट्रेडिशनल स्पोर्ट या मेन स्ट्रीम स्पोर्ट आपको फिर बहुत अच्छा होना पड़ता है तो आई गेस मैं इतना अच्छा नहीं था बट आई डिसाइडेड कि अच्छा ठीक है ये भी एक लाइन साथ साथ चल रही है तो वाई नॉट मेक अ नेम इन दिस फील्ड तो वो खुद ब खुद रास्ते खुलते गए तो क्रिकेट में नहीं नाम बना सका तो माउंटेनियरिंग में बना लिया। हाले तक कितनियां अचीवमेंटां तुसी हासिल कर लीतियां? सो 7000 मीटर की एक चोटी मैं चढ़ चुका हूँ एक मैं और अटैम्प्ट की है इस अगस्त में उसके अलावा आई बीन टू एवरेस्ट आई एम दी ओनली पाकिस्तानी टू हैव ट्वीटेड फ्रॉम 7000 मीटर ऑन एवरेस्ट प्रॉबेबली द फर्स्ट एंड देन उसके अलावा आई बीन टू गैशब्रम जब गैशब्रम जो है ये K2 की लाइन में है अगर आप स्कर्दू से जाए बालतोरो तो K2 है फिर ब्रॉड पीक है फिर गैशब्रम 4 है 2 है 1 है 3 है ये सारे उसके पास हैं तो जिस तरह K2 है उस तरह G1 G2 है तो आई बीन टू बोथ G1 एंड G2 और ये दोनों 8000 मीटर की चोटियाँ हैं। अच्छा दुनिया में 14 8000 मीटर की चोटियाँ पाकिस्तान में 5 हैं उनमें से काफ़ी सारे बेस कैंप्स मैं देख चुका हूँ मतलब so I've been attempting 8000ers for the last 3 years so I guess in another few years I'd be able to summit one of them so yeah ਹੁਣ तक ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ट्रैवल कर चुके हो? सो पाकिस्तान में इफ़ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान तो नॉर्थ काफ़ी सारा देखा हुआ है चित्राल मैंने बहुत बचपन में देख लिया था स्कर्दू में काफ़ी दफ़ा गया हूँ हुंजा में बहुत दफ़ा गया हूँ एक टाइम ऐसा था कि मैं साल में 2 दफ़ा जा रहा होता था हुंजा फिर उसके अलावा आई बीन टू दियोसाई ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਰਾ ਹੋ ਗਏ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂਦੇ उन्होंने आप ऐसे कमे लाया सो कराची में मेरी पैदाइश कराची की सो कराची भी मैंने देखा हुआ है। अच्छा साउथ पंजाब पहली दफ़ा मैं ये लॉकडाउन से फ़ौरन पहले गया हूँ फरवरी के एंड पे तो साउथ पंजाब में मैंने तौंसा देखा है बहावलपुर देखा है चोलिस्तान वैली थोड़ी सी जो है उसको चखा है फिर इसके अलावा बलूचिस्तान में सिर्फ मैं जो ना मकरान के साथ कुंड मलीर के साथ है ये नेशनल पार्क है वहाँ गया हूँ
तो सो काफ़ी पाकिस्तान में काफ़ी घूम फिर लिया, लेकिन मेरी अब ख्वाहिश है कि कोयटा वाली साइड पे भी जाऊँ, ज़ियारत वाली साइड पे भी जाऊँ, वो जगह भी देख के आऊँ। स्वात भी गया हूँ। सो अगर पाकिस्तान से बाहर का हम देखें तो एट अ वेरी यंग एज आई सीन अ लॉट ऑफ यूरोप, अ बिट ऑफ द यूएस, यूके भी देख लिया था, सऊदीया भी गया हूँ, बट एट अ मोर मेच्योर एज आई बीन टू थाईलैंड, आई बीन टू दुबई, आई बीन टू टर्की। टर्की में तब गया था जब अभी ये इश्क ममनू और ये वाले ड्रामे मेरा सुल्तान नहीं आए थे, तो बिफोर द क्रेज़ एक्चुअली स्टार्टेड, तो मैं टर्की देख आया था। तो आई गेस के इफ़ एनी अदर प्लेस अदर देन पाकिस्तान आई वुड वांट टू लाइक कीप गोइंग टू वुड बी टर्की। ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ? ਫਿਰ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ खूबसूरत जगह ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ पाकिस्तान ਦੀ? अच्छा, मज़ेदार बात ये, मैं जिस पहाड़ पे भी जाता हूँ ना, मुझे उससे इश्क हो जाता है। अब स्पांतक में गया और जाते हुए भी बड़ा खूबसूरत रास्ता है, कुछ 3 दिन लगते बेस कैंप पहुँच जाते। वापसी पे जब हम आए ना तो आई गेस अगस्त था, तो फूल ही फूल थे, बड़े ही खूबसूरत फूल, और वो उनको देख के आप मतलब ऐसे आप थके टूटे जा रहे हैं, आपका बुरा हाल है, पर उन फूलों में से जब आप चलते हुए जा रहे हैं उनकी खुशबू आपको आ रही है, तो आप कहते हैं यार इससे खूबसूरत ट्रैक नहीं है। अच्छा, अब ये आपको आपका पसंदीदा ट्रैक हो गया उस साल के लिए। अगले साल आप पता लगता है जी अब आप पहुंच गए हैं, लेट से शमशाल दोबारा चले गए, वहाँ पे ख़ास चोटी पे चले गए, वो उस वैली में आपको वो वैली बड़ी पसंद आ रही है। मैं शमशाल में 7 दफ़ा गया हूँ। अच्छा, सो आई डोंट हैव टू टेल के दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस, बट देन अगेन मैं बालतोरो पे 3-4 दफ़ा ख्वार हुआ हूँ, तो वो मुझे पसंद तो नहीं है, लेकिन जो बेस कैंप और पहाड़ इटसेल्फ है वो मेस्मराइजिंग होता है। अब मैं इस साल अस्तोर गया हूँ कोई 20-19 साल बाद, तो जब मैं पहुँचा फिर बिल्कुल बहार अपने जोबन पे थी, तो मुझे अस्तोर से फिर प्यार हो गया। अच्छा, ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਅੱਛਾ, ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਨੇ ਇਹ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? सो व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि जो मैं सिर्फ ये नहीं कि मैं चोटियाँ चढ़ता हूँ या मैं सफ़र करता हूँ, आई राइट फॉर अ लॉट ऑफ पब्लिकेशंस। अभी रिसेंटली मैंने हिलाल मैगज़ीन है ISPR का, उसके लिए लिखा है एक आर्टिकल अबाउट माई गैशेप्रम एक्सपेडिशंस। उसके अलावा आई एम वर्किंग ऑन इस्टेब्लिशिंग माई यूट्यूब चैनल, उस पर मैं ये जो कुछ करके आता हूँ वो डाल देता हूँ। देन आई वर्कड फॉर, आई प्रोड्यूस्ड कॉन्टेंट फॉर इंडस न्यूज़, अभी एक और चैनल से बात चल रही है। सो वट एवर आई डॉक्यूमेंट I give it to them and then we work together on post production. उसके अलावा I'm working on a couple of e-commerce ventures, क्योंकि ज़ाहिर है पहाड़ चढ़ के तो रोटी रोज़ी तो नहीं चलती। तो या सो जो वो e-commerce ventures हैं that I'm doing so that I can sustain whatever I'm doing. And then other than that I keep reaching out to brands for collaborations. तो brand partners को ले जाते हैं, उनके लिए कोई वीडियो शाउट आउट कर लेते हैं, कोई उनको कोई प्रमोशन दे देते हैं ऑन माई ओन चैनल, एंड आई इवन मेक कंटेंट फॉर देम। सो दिस इज़ ऑल दैट आई एम डूइंग। अच्छा, कोई बचपन ਦਾ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ? बचपन ਦਾ सो वाक़े तो बहुत सारे हैं, कुछ चंगा ही सुना दो ना। सो आपने बल्कि बिल्कुल शुरू में पूछा कि पहाड़ों पे जाने का शौक़ कैसे हुआ। तो 1991 में हम एक यूरोप में थे, एक बड़ा सारी की सारी फैमिली में इकट्ठे उधर थे, तो स्विट्ज़रलैंड जाने का इत्तेफाक हुआ। हम बार बार सुनते हैं कि जी स्वात जो है वो पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड है या एशिया का स्विट्ज़रलैंड है। इट इज़, बट स्विट्ज़रलैंड के अंदर आई गॉट टू सी मैटरहॉर्न, जंगफ्रॉ से मैटरहॉर्न देखा। तो एक तो स्विट्ज़रलैंड, ओवरऑल यूरोप वैसे ही खूबसूरत है, बट स्विट्ज़रलैंड में ना एक वो थी, नॉट रॉ ब्यूटी बट या वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड ब्यूटी। गांव है, शहर है, कोई गंद कचरा कुछ नहीं। 1991 में सोलर से चलने वाली बसें वहाँ मौजूद। अच्छा, हमने मतलब सुनी भी नहीं होंगी, लेकिन वहाँ थी। और वो जो पहाड़ सेल्फ है, अगर आप देखें, अगर आपने टॉबलरोन चॉकलेट खाई हो तो उस पर एक पहाड़ बना होता है लोगों में, वो है मैटरहॉर्न। अच्छा, ठीक है, बड़ा खूबसूरत पहाड़ है, और वो मेरे लिए ना एक वो बन गया हुआ है, एक मेयार बन गया हुआ कि ये पहाड़ उसके जैसा लगता है। मतलब केटू जाते हुए भी एक पहाड़ मुझे नज़र आया, बखोरदास कहते हैं, बड़ा खूबसूरत पहाड़ है। मैंने कहा ये मुझे यहाँ का मैटरहॉर्न लग रहा है। सो आई हैव नेवर बीन एबल टू फॉरगेट माय एक्सपीरियंस द सॉर्ट आई हैड इन स्विट्ज़रलैंड। खूबसूरत मुल्क है,
जैसा वाकई हमारे स्वाद जैसा या हमारा स्वाद उस जैसा। ਹਾਂ सो या तो आई हैवंट बीन एबल टू फॉरगेट दैट। ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ? ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? सो देखिए साल में कोई 1.5 से 2 महीने तो मैं पहाड़ों पे हूँ। ਅੱਛਾ एक ਸਮਰ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ ਮੇਡ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਪਕਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ? ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ नहीं तो आप पकानी पैंदी तो तो लिटरली फिर हम रोटी नहीं पकाते ना, फिर हम वी जस्ट टेक स्टफ जिसको हम इंस्टेंटली बना लें या उसको हीट अप कर लें। फ्रीज ड्राइड फूड होता है। सो या वो भी एक बड़ी लंबी डिस्कशन है, बट या सो महीना 1.5 गर्मियों में और 15 से 20 दिन सर्दियों में। सो इसी वजह से आई डोंट गेट इनटू डूइंग माय ओन टूरिज्म थिंग। अगर मैं करना चाहूँ तो मैं एक टूरिज्म कंपनी खोल लूँ, बट फिर मैं घर से और भी दूर हो जाऊँगा। तो या सो ओवर द ईयर्स ऑल्दो बड़ी बजट एक्सपेडिशंस होती हैं तो सैट फ़ोन तो नहीं होता ना इंटरनेट की कोई यूजुअली फैसिलिटी होती है, बट आई हैव दिस डिवाइस जिससे मैं SMS भेज सकता हूँ वाया सैटेलाइट। तो इवन एट 6000 मीटर, इवन एट 6500 मीटर या इवन 8000 मीटर आई एम कनेक्टेड with my family in the rest of the world. I can even tweet from there one way. I can't see the responses until I'm back into civilization. But अब राब्ता रहता है, but it's very hard. मैंने 3 TEDx talks की हैं और उसमें से जो पहली थी उसमें मैंने इसका जिक्र किया कि बड़ा मुश्किल काम है, ख़ासकर जब आपके अपने बच्चे हों। अगर आपकी अपनी शादी नहीं हुई तो आपको अपने भतीजे भांजे याद आएंगे, ਭਣੇਵੇਂ ਭਣੇਵੀਆਂ ਯਾਦ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਤੇ ਬਹਿਣਾ। ਤੇ ਇफ़ योर फैमिली, इफ़ योर वाइफ इज़ नॉट सपोर्टिव तो ये शौक हो नहीं सकते, ये जा नहीं सकते। सो यू हैव टू ईदर फाइंड अ लाइफ पार्टनर हु सपोर्टिव या यू हैव टू मेक देम इन लाइन विद यू कि वो समझ जाए कि यार इसने तो छोड़ना नहीं है, चलो हम इसको सपोर्ट ही करें। ਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿੰਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।